The old banyan tree stood sentinel at the edge of the village. गांव के किनारे पर पुराना बरगद का पेड़ प्रहरी की तरह खड़ा था. Its roots, thick and gnarled, burrowed deep into the earth. इसकी जड़ें, मोटी और गांठदार, पृथ्वी में गहराई तक धंसी हुई थी. Generations of villagers had sought shelter under its sprawling branches. पीढ़ियों के ग्रामीणों ने इसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे आश्रय पाया था. They shared stories, laughter, and sometimes quiet tears. उन्होंने कहानियां, हंसी और कभी-कभी चुपके से आंसू साझा किए. One sweltering summer afternoon, a young girl named Priya sat beneath its shade. एक तपती गर्मी की दोपहर में प्रिया नाम की एक युवा लड़की इसकी छाया में बैठी थी. She was sketching in her notebook, her brow furrowed in concentration. वह अपनी नोटबुक में रेखाचित्र बना रही थी. उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी. Suddenly, an old man with kind eyes and a weathered face approached her. अचानक, दयालु आंखों और झुर्रियों वाले चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया. What are you drawing, little one? He asked gently. तुम क्या बना रही हो, छोटी बच्ची? उसने धीरे से पूछा. प्रिया shyly showed him her sketch of the banyan tree. प्रिया ने शर्माते हुए उसे बरगद के पेड़ का अपना रेखाचित्र दिखाया. The old man smiled, his eyes crinkling at the corners. बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए. It is beautiful, he said. This tree has seen so much. यह सुंदर है, उसने कहा. इस पेड़ ने बहुत कुछ देखा है. He settled down beside her, leaning against the massive trunk. वह उसके बगल में बैठ गया, विशाल तने के सहारे टिका हुआ. I remember playing here as a boy, he reminisced. मुझे याद है, मैं यहाँ एक लड़के के रूप में खेला करता था, उसने याद किया. The stories this tree could tell. He trailed off dreamily. यह पेड़ कितनी कहानियां सुना सकता है. वह सपने में खो गया. Priya looked at the ancient tree with newfound wonder. प्रिया ने नई विस्मय से प्राचीन पेड़ को देखा. Its leaves rustled in the gentle breeze, as if whispering secrets. इसकी पत्तियां मंद हवा में सरसरा रही थी, मानो रहस्य फुसफुसा रही हों. The old man began to share some of those secrets with Priya. बूढ़े आदमी ने प्रिया के साथ उन रहस्यों में से कुछ को साझा करना शुरू कर दिया. He spoke of village festivals held in its shade, of lovers' secret meetings. उन्होंने इसकी छाया में आयोजित गांव के त्योहारों, प्रेमियों की गुप्त मुलाकातों के बारे में बताया. He recounted stories of sorrow and joy, all witnessed by the silent tree. उन्होंने दुख और खुशी की कहानियां सुनाई, जो सभी मौन पेड़ द्वारा देखी गई थी. Priya listened intently, her sketch forgotten in her lap. प्रिया ध्यान से सुनती रही, उसका रेखाचित्र उसकी गोद में भुला दिया गया. She realized that the tree was more than just a tree. उसे एहसास हुआ कि पेड़ सिर्फ एक पेड़ से कहीं ज्यादा था. It was a living testament to the history and heart of their village. यह उनके गांव के इतिहास और हृदय का एक जीवंत प्रमाण था. As the sun began to dip below the horizon, painting the sky in hues of orange and purple. जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया. The old man rose slowly, his joints creaking slightly. बूढ़ा आदमी धीरे-धीरे उठा, उसके जोड़ों में थोड़ी सी चरमराहट हुई. Remember the stories, little one, he said with a warm smile. कहानियां याद रखना, छोटी बच्ची, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा. They are the roots that hold us together. वे जड़ें हैं, जो हमें एक साथ रखती हैं. Priya nodded, her heart filled with a newfound appreciation. प्रिया ने सिर हिलाया, उसका दिल एक नई सराहना से भर गया.
She looked back at the banyan tree, now silhouetted against the twilight sky. उसने बरगद के पेड़ को वापस देखा, जो अब गोधूली आकाश के खिलाफ सिलहूट की तरह दिख रहा था. Its silent presence seemed to hold the wisdom of ages. इसकी मौन उपस्थिति युगों के ज्ञान को धारण किए हुए प्रतीत होती थी. Priya knew she would never look at the old banyan tree the same way again. प्रिया जानती थी कि वह अब कभी भी पुराने बरगद के पेड़ को उसी तरह नहीं देखेगी. It was a keeper of stories, a silent witness to the ebb and flow of life in their small village. यह कहानियों का रखवाला था, उनके छोटे से गांव में जीवन के उतार चढ़ाव का एक मौन गवाह. And as she walked home, the stories the old man shared echoed in her mind. और जैसे ही वह घर चली गई, बूढ़े आदमी द्वारा साझा की गई कहानियां उसके मन में गूंजती रहीं. She understood that every place, every object, held its own stories. वह समझ गई कि हर जगह, हर वस्तु की अपनी कहानियां होती हैं. All you had to do was listen closely enough to hear them. आपको बस उन्हें सुनने के लिए काफी ध्यान देना होगा. रोज ऐसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें.